She cooks. She cooks. Okay, remember, we are, see here, nothing is changed, only verbs, if you add only ed, it becomes past, simple past. Simple past होगा पूरा ये in the morning. Okay, yesterday in the morning, you can use here yesterday in the morning, that's it, only one word, yesterday in the morning. Played. And here cooks is present, simple present. But if you say cooked, that is past. Okay, we'll discuss about this simple present tense. Actually, why do start with this simple past? Because there is no confusion here. The reason, see, Ravi is a singular. Okay, and in the simple present tense you have to use singular verb, that is eats. But here this is the past. In the past there is no singular, no plural. हमेशा हम आसानी से मुश्किल की तरफ जाना, तो ये आसान पहले हम ये सीख लें। और एक बात याद रखें आप, ये क्यों हम सिंपल पास्ट शुरू करें हैं, मैं उसकी वजह बताता हूँ। कि देखिए, ग्रामर के जो रूल्स हैं ये सेट रूल्स हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब सिर्फ ये बताने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह बताए वो। जैसा कि आप सुने होंगे कि एक बादशाह ख्वाब देखता है और वो ख्वाब की ताबीर जो है ना मालूम करना चाहता है, क्योंकि वो एक थोड़ा सा अनयूजुअल ख्वाब होता है। तो वो क्या करता है, आलिम को बुलाता है और अपना ख्वाब बयान करता है। आलिम अपने इल्म के मुताबिक, इल्म मतलब नॉलेज, कॉग्निजेंस या परसेप्शन, इदराक जिसे कहते हैं हम, ओके, उसके मुताबिक वो अपने पूरे फार्मूले के तहत जो है ना उसकी ताबीर करता है। वो ताबीर क्या होती है कि उसकी औलाद जो है जल्द मर जाएगी। बादशाह को गुस्सा आता है और वो फ़ौरन से उसको मार डालने का हुक्म दे देता है। लेकिन अब उसके बावजूद बादशाह को एक तशवीश होती है कि भाई ये कुछ तो है इसमें। तो उसने दूसरे आलिम को बुलाता है और वो आलिम ख्वाब सुनकर बादशाह को मुबारकबाद देता है कि भाई खुदा ने उसकी उम्र काफ़ी तवील की है और आपकी औलाद अपनी पूरी उम्र गुजारेगी, यहाँ तक कि वो भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी अपनी पूरी उम्र करने के बाद, मगर आप ज़िंदा रहेंगे। इस आलिम को बादशाह क्या करता है, इनाम व इकराम से नवाजता है। लेकिन बाद में वो गौर करता है, अरे भाई पहले वाला जो आलिम था वो भी तो वही ताबीर दी थी, तो फिर फ़र्क क्या था? फ़र्क बोलने वाले पर था। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि आपकी जो सेट ग्रामर रूल्स है ये पूरे सेम है। ये हर कोई वही आपको फॉलो करवाएगा, लेकिन अपने अपने तरीके से। तो हम आज शुरू करें सिंपल पास्ट, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये आपको जो है ना आसान रहेगा, क्योंकि इसमें जब क्वेश्चन भी बनेंगे तो खाली डिड यूज़ करेंगे आप, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए, अभी जो मैं वाक़या बताया हूँ इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इसको इंग्लिश में आप कैसे बनाएंगे मुझे बताइए। Once there was a king, he had dream. Yeah, very good. This is a main verb. He had an unusual dream. You can say a strange dream. Yeah, very good. Okay, an unusual dream. Okay, he called a scholar. Yes, he called. Yeah, he called. He called a scholar. Okay, to interpret, uh, interpret, interpret. Okay, interpret, I mean ताबीर देना, interpret करना, ताबीर देना, explain करना, the intending जो meaning है उसके। Okay, very good. Okay, he called the scholar to interpret the dream. Okay, and according to his learning, knowledge, cognizance, perception. Okay, so the scholar said that your children would die soon. वो सुनना ही था। Yes, very good. What happened?
कि the king became angry. The king became angry. You can use furious better, okay? Angry क्या है, थोड़ी देर में गुस्सा खत्म हो जाता है, furious कंटिन्यू रहता है. Anyway, he became furious and killed him. Yes, okay, killed him. Killed him. These are all the verbs we use here. Killed him. But he had not satisfied. Yes, and he was anguish. See here, the word I use was anguish. Anguish here an adjective. Actually, it is V3 form. Okay, I will show you over here B forms. Okay, I will show you just now. Anguished. Okay, anguished. He was anguished. Yeah, he was anguished. Okay, and called another expert. Okay, after listening the whole dream, the second scholar said with politeness, "Oh, Your Highness, that the dream was excellent, and yes, explain the intended meaning." Okay, whatever the meaning was there, what was the meaning? Already the first one told. Okay, so that the king got a very long life, and his children would also live for a long life after reaching a good age. They would die before you. Okay, and you would survive still. Yeah, very good, correct. So all these I mean जो वर्ड्स है यहाँ पर आपको ये पूरे के पूरे ये V2 फॉर्म में है. तो आज का जो हमारा लेसन था वो यही है, सिंपल पास्ट टेंस किस तरह से उसको बोलें. चलिए, एक वाकया सुनाया था, उसका ट्रांसलेशन. एनीवे, अब इसको हम रिमूव कर रहे हैं. चलिए, आप कुछ वर्ड्स लें और आप बनाएं. ये होमवर्क नहीं है, ये कुछ नहीं कि आप लिख लेते बैठे, लिखने का नहीं है बिल्कुल, बल्कि चलते फिरते आप वाइल ट्रैवलिंग, वाइल कुकिंग, वाइल डूइंग ऑफिस वर्क, वाइल जो भी काम करते हुए, क्योंकि बॉडी काम में रहती है, माइंड आपका जो है ये कि किसी भी वर्ड को आप किस तरह से उसको लॉन्ग करते जाएं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ बी फॉर्म. वर्ब एक्चुअली क्या है, ये आमतौर पर एक्शन वर्ड तो होता ही होता है. ओके, एक्शन वर्ड होता है. ओके, दूसरा जो है ना, इसको हम लिंकिंग बोलिए, लिंकिंग वर्ब होगा ये. ओके, स्टेटिव वर्ब बोलिए, मतलब ये तो एक्शन करता है, ये खामोश रहता है, ये स्टेटिव, ये काम नहीं करता, ये स्टेटिव. ओके, नॉन एक्शन. ओके, एंड देन अनदर वन इज देयर, possessive. Actually, verb is a big chapter. It's a very very long chapter. Okay, और इसमें different kinds of जो है ना verbs मिलेंगे. Transitive, intransitive, helping verb, causative verbs, और फिर अब verb से पहले भी वो finite verbs, non-finite verbs. Non-finite जो है दिखते तो verb हैं, but वो usually noun का या फिर adjective का काम करते हैं. तो आई मीन एक बिग चैप्टर है इसको. ग्रामर हम नहीं सीख रहे हैं, हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं. हाउ टू मेक अ सेंटेंस यूजिंग द ग्रामर. ओके, नहीं कि पूरा ग्रामर हम नहीं सीख रहे हैं, यूजिंग द ग्रामर. हाउ वुड यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, बिकॉज वी नीड verb, noun, what to. Okay, so B forms. I was speaking about B forms. B forms means जब भी B form का वर्ड आया माइंड में, तो 3 वर्ड्स जहन में ला लें आप. M, is, and R. अब जैसा कि I be a teacher, I be a teacher, ये इस तरह से नहीं बोलते हैं. लेकिन जब आप ये सब्जेक्टिव वो अलग ग्रामर है, वो उसमें अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर बी यूज़ करते हैं. बट अगेन यहाँ पर यूजुअली एम आप यूज़ करिए. I am a teacher. Here M is a main verb, like we use here I drink water. I drink water. Okay, सेम ये जो फंक्शन दे रहा है, ये भी इसका भी वही फंक्शन है. बट एक्शन वर्ड हमेशा सिर्फ एक्शन को शो करेगा,
और इसका दूसरा कोई काम नहीं होगा। बट बी फॉर्म्स का क्या है, एक तो ये मेन वर्ब भी बनता है, जैसा कि यहाँ मेन वर्ब है, ओके, इसके बाद कोई और वर्ब नहीं है। आई एम अ टीचर, ओके, आई एम गोइंग टू स्कूल। नाउ हियर द मेन वर्ब इज गोइंग, नॉट एम। ओके, जब ये एम कुछ नहीं करता तो हम यूज़ क्यों कर रहे हैं इसको, ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म को बता रहा है कि भाई एनी एक्शन जो है ना विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, अभी कोई काम हो रहा है तो उसको जाहिर करने के लिए एम यूज़ करेंगे आप। और ये इसका कोई माना नहीं है, मेन वर्ब इसका मीनिंग लेंगे आप, आई एम गोइंग, आई एम कुकिंग, आई एम वर्किंग, ओके। तो ये मेन वर्ब्स है, ये सिर्फ बता रहा है कि टेंस कब हो रहा है। ये टेंस बताने की भी कुछ सिंबल्स हैं, अलामतें हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये एम है, इज है, ही इज, he is, okay, he is a doctor, okay, he is a doctor, okay, they are Indians, they are, okay, they are students, okay, they are students, okay, they are students, are students, okay, they are students। तो हाँ, नोट करिए जब आप सिंपल प्रेजेंट में है तो ये ही देखिए सिंगुलर है, तो ये वर्ब भी सिंगुलर है, ओके। दे जो है ये प्लूरल है और यहाँ पर आर भी प्लूरल है, ओके। हाँ, आई एम के बारे में थोड़ा सा अभी बहस ना करें, क्योंकि आई सिंगुलर है या प्लूरल है, ये तो बिग डिबेट है ये, अभी हम उसमें डिबेट में जाना नहीं है। क्योंकि अब आई जब आप यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस में तो आई हैव यूज़ करते हैं, हैव जो है प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। एनीवे, तो इतना याद रख लीजिए कि आई के साथ एम यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट में, हम ये प्रेजेंट को बोलेंगे, ओके। ही के साथ इस, दे के साथ आर यूज़ करेंगे। और ये इसका क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान है, यहाँ पर मुश्किल होता है क्वेश्चन बनाना, लेकिन इसमें बड़ा आसान है, खाली इसको इधर पलटा लें आप, बन जाएगा एम आई ए टीचर, एम आई ए डॉक्टर, ओके, और इज ही अ डॉक्टर, आर दे स्टूडेंट्स। तो हियर जो है आपको बहुत आसानी होगा। और नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना इसमें बड़ा आसान हो जाता है कि आई एम नॉट अ टीचर, ओके, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, ओके, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी इसमें आसान हो जाएगा। तो ये बी फॉर्म्स भी वर्ब है, लेकिन ये जो है एक्शन नहीं है बल्कि नॉन एक्शन है, स्टैंडिंग है, स्टेट्यूब है, स्टेट वर्ब है, बीइंग है, एग्जिस्टेंस शो करता है। ये इस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी वजूद का इजहार करता है, वजूद का। जैसे कि आई एम ए टीचर, मेरा वजूद क्या है, आई एम ए टीचर, ओके, मौजूदगी का इजहार करता है, हालत बताता है, हालत, अभी क्या हालत है, आई एम ए टीचर, मेरा पोजीशन बता रहा है यहाँ पर, आई एम ए टीचर, ओके। सो ये बहुत वेरी वेरी डिफिकल्ट वर्ड है फॉर द learners of the English language. R is M are very difficult for learners, because they usually perform two functions, okay, as a main verb and as a helping verb, and was इसका V2 है और ये जो है जनाब इसका वर। अच्छा, अब जैसा कि हम बताए थे अभी कि जो है ना I drank water, okay, I drank water, okay, V2 फॉर्म है, मैं पानी पिया। लेकिन अब बोलना था कि मैं पहले क्या था, चलिए, I was, okay, I am a teacher, okay, I'm a teacher, okay। तो now माजी में, पास्ट में, I was a student, I was a student of Osmania University, okay, I was a student, I am a teacher now। अच्छा, in future, here see, I will be a lecturer, okay, I will be a lecturer। Here will shows the future tense, this is the indicator of future, we will discuss after this one, future, I mean tomorrow we will go by this future tense। So will is the indicator, I just use the word indicator, okay, whenever you see will it means 100% future tense, okay। Actually there is no future in English has
drink, drank. But drink present, drank past. So what is the future? No future in English. Huh? So to show the future, we use the word will. We will discuss in detail later. Okay. So what we have understood today, that these are the things. Um, be okay. These are very important things. So let me finish this one.